Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Dear Sister by Happy Chirp. I hope you all are doing great. Today I have with me Varda. Hello, Hi Varda. guys. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. And another guest that we have today is our new team member, Iza Fatma. How are you, Iza? I'm good. Welcome to the show. Thank you. Yeah, so today we have something interesting in mind, like something that we three can connect on and something that we wanted to talk about, pehle bhi, but we couldn't talk about it. And that is university life. Yeah. And since Iza is still in university, so we would like कि आप थोड़ा सा start करें and then tell us, what you're doing, कौन सा semester है, कौन सी degree है. थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं. So I study architecture from NUST and I'll be starting my 5th year this fall semester. Okay. It's my final year तो उस वजह से और usually degrees के 4 साल होते हैं लेकिन मेरे 5 है तो I have most of my friends have like graduated but I did make friendships with जो 1 साल junior बच्चे होते हैं so that is what I know will make things easier for me because I'm definitely not the type of student जो के अंदर classroom में ही रह कर पढ़े. I love going out and I love meeting people and my friends. So with all my friends graduating, I think it would be not that fun, but I think I have found my place by making friendships with the junior ones. So do you think like having a 5th year is a blessing or a curse? Having a 5th year I during can't even COVID. imagine having another year, but okay, आप बताओ. That's why when I asked the question, ना मेरी वर्दा की तरफ से लगा था because I really wanted कि उसका भी opinion आएगा. But what do you think like? I think usually under normal circumstances it would have been a curse लेकिन given कि COVID की वजह से 2-1.5 साल चले गए ना Yeah, fair enough. Yeah. तो उसकी वजह से like many people are like oh हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रहती थी we haven't done all the things in our bucket list but I'm like I have a year I'll do that तो it's nice उस लिहाज से हाँ उस तरीके से देखा जाए तो it's fair enough like yeah it makes sense. But what about you Varda? What have you studied? Where you have studied from? और आप अपनी university life के बारे में हमें बताएं. Very interesting question और आगे से मेरा जवाब interesting भी होगा क्योंकि my अब university होना life चाहिए was- interesting. Oh shit, that's too much Full- pressure. बहुत pressure That is है too भाई, much pressure on me, guys. But my university life was okay. I mean, it wasn't as sparkling and You as... went to? I went to ComSats. Okay. Yeah. And you did? I've done my BBA. ठीक है. And my majors was marketing और it wasn't as sparkling and as good as everybody describes it is. For me it was the typical वो कहते थे ना वो snakes and being around having friends that you think are forever but then it turns out otherwise. So मेरा university का सारा experience वैसा था. By the second year of university I thought that it's going all good. मतलब grades भी अच्छा रहा. I was the topper by the way guys. तो of my batch. तो मुझे ये था कि अच्छा चलो everything's going good. दोस्त भी अच्छे हैं, सब कुछ सही 10 on 10 जा रहा है. But then COVID came. ठीक है. And यहाँ पे जो आपने एक बात की कि like 5th year is it like a blessing or a curse? तो even though I didn't get to spend my last year university का and I stepped into the practical life बस इस तरह अचानक से but I wouldn't want it otherwise because with university now I feel like I'm more serious now and I'm more I learned a lot. My growth was double than it would have been otherwise because I was thrown into it so that's why. And then again 5 साल तो नहीं यार मतलब 4 साल काफ़ी होते हैं दोस्तों के लिए भी पढ़ने के लिए भी एंड और डिटेल में भी जाते हैं. आप बताएं ज़रा अपना थोड़ा सा. So I was in this International Islamic University. I did my bachelor's in media and communication studies with my specialization in media management and marketing. So अब मेरे 4 साल का experience जो है ना it's very unique, like it's very different from what I hear people say and ये वो. अब उसमें ये था कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि आप 4 साल में कोई किसी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी या नहीं, मैं बोलूँगी नहीं. Because I did not do any single thing outside of my course. Wow, same guys. What? I did not. For 4 years. For 4 years I did not do anything. Like they were fair, वो fun, वो लगते थे, क्या होते हैं? Galas होते हैं. Galas and Fun everything. fairs type Yeah, and then cultural weeks. Carnivals. Yeah. I did not attend any of these.
Okay. Interesting. Yeah, but if you ask me, but लेकिन आप यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जज करने वाली होती है. एक होती है वो बिल्कुल स्टडीज रिलेटेड, एक है फ्रेंड्स रिलेटेड, एक है को करिकुलर एक्टिविटीज रिलेटेड, एक ओवरऑल कल्चर रिलेटेड. सो यू नो इट बहुत सारी चीज़ें मिल के मेक्स एन एक्सपीरियंस, राइट? So co-curricular activities में I was not very active. Like I was a very active student in co-curricular activities till my school. Then college happened. College में भी I moved cities, so I was not into कि किस तरीके से करना है क्या नहीं करना. I was just into studies के बस पढ़ा के ना. And वो थीटा बच्चा थी ना मैं भी तो बस पढ़ा के चलो आगे जाना. एंड यूनिवर्सिटी स्टार्टेड एंड यूनिवर्सिटी वॉज अ वेरी डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंसेस. लाइक पहले आपके आप जब स्कूल और कॉलेजेस में होते हो एवरीथिंग इज़ वेरी यूनिफॉर्म्ड, राइट? हर चीज़ आप ही की तरह के लोग होंगे ना, आप ही की तरह के दिखते हैं एटलीस्ट, बिकॉज आप सब अगर देखो एक लाइन में खड़ा कर दो तो एवरीबडी लुक्स द सेम. बट इन यूनिवर्सिटी different people, different backgrounds, different dressing sense. You come across so many different people, so many different personalities every day. And for someone who's an introvert, for someone who has shut herself down for the past 2 years after school, so मेरे लिए ना वो intimidating था पहले कि so many people out there, so many different backgrounds, what am I going to do, right? और जिस तरीके से वर्धन ने बोला कि starting में तो ऐसा लगता है सब ठीक है ना, you meet people, you are friends with everyone, like you are friendly with, at least friendly with everyone, और आपके बड़े बड़े circles होते हैं, आप सब कैफे साथ जा रहे हैं. Everyone is also very friendly with you. इस बात को भी mention करें. Yeah, everybody is very friendly with you. आप सारे कैफे साथ जा रहे हो, पूरा टोला उठ के साथ जा रहा है, सब कुछ हो रहा है. You're in it together. फिर आते हैं आपके एग्जाम्स और फिर आपको पता लगता है who's with you for what purposes, who's with you for certain things, right? I think मुझे ये realization, I found my group by the end of second semester. अच्छा. Like first 2 semester was still tryouts, you can say. ठीक है? You meet people, you sit with them, you are friendly with them, they are very friendly with you, but on certain level the vibe still does not match. ठीक है? तो आपको टाइम लगती है. And I think you should be very patient with finding people, because I think आपको जो पहला बंदा मिलता है, that person certainly not your friend. Right? So वो हुआ, but मैं इसलिए ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज इफ़ यू आस्क मी हाउ वाज माय यूनिवर्सिटी लाइफ, इट वाज अमेजिंग बिकॉज आई फाउंड द most amazing friends, like the friends that I know, mashallah, subhanallah, that I know that at any point wherever I am in life, those people will be there for me, right? कि कुछ भी है अच्छा, कुछ वो really ride or die. Yeah, exactly, ride or die वाली चीज़. So I found those people, and my university life, Vardha and Iza, I am not even kidding, revolved around those 3 people only. That's cute. That's new. Yeah. And it was like that I did not care about what's happening in the class, what's happening outside of the class, what's happening in the campus. I was like, ये 3 लोग मेरी दुनिया है. Once you find those people, you're like, अच्छा ठीक है, यही यूनिवर्सिटी है, यही लोग हैं, इसके अलावा कुछ नहीं. And I was also going through a very internal conflict at that time, self-reflection, you're finding yourself, you're finding what clicks with you or not. So I was like, I don't have the energy to go out and mingle with people that I do not vibe with. Exactly. Right? So these are the people that I vibe with. I'm going to stay with them and then I'll figure out my shit on my own as well. Right? So it was amazing years. It's just so weird how I can't relate to any of them. Yeah, we'll come to you. Like I'm just trying, I'll just say one thing and then I'll come to you. Okay. And the way I had it, and because मेरा भी last semester was, COVID में चला गया था, and we could not even had our like last proper semester, the farewell, the things that you do, कि आपको आहिस्ता आहिस्ता हिट करना शुरू होता है कि shit यार ये अब खत्म होने वाली है, shit यार ये अब खत्म होने वाली है, मैं क्या करूँगी, मैं क्या नहीं करूँगी. वो नहीं हुआ मेरे साथ. हम पहले से ही घर में बैठे हुए हैं, पेपर्स भी हमने जिस तरीके से दिए ग्रेजुएट. So if the question that I ask you, like if 5th year is a blessing or curse, I would take that 5th year. To be with those people. It's just so weird how having good friends changes that. Yes. I mean, it's just your friends, not your education, not anything else. It's just your friends, guys. Yes, I am. मतलब कि you are ready to go through that shitty administrative system, that shitty educational system, if you have the right people right beside you. Just the right people. I swear to you guys, like I still have not found the strength to apply for masters because I know I will not be doing with those people. Oh, okay. Because Makes sense. because I've heard people saying like
आपके जैसे आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन रिलेट टू हैव फाउंड द राइट पीपल, राइट? सो इट बिकम्स डिफिकल्ट. अगर आप पढ़ने तो जा रहे हो, आप सफर तो कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, अगर आपके पास अच्छे लोग ही नहीं है दैट यू कैन काउंट ऑन, देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट, लाइक यू नो. सो इस वजह से आई विल टेक दैट 5th year just for that friendship. And that's the biggest factor I think that university changes. Like university life में अगर आपको आपके अच्छा circle मिल जाए तो I think that can change your entire experience. It really so tell us a bit in detail about your experiences, Vardha, that you cannot relate to ours. Yeah, and एक और सवाल ये कि like वो कह रही है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला एक फेज आया, मुझ पे भी आया था, तो क्या आप पर भी ये फेज आया था and how did you feel about that? You can explain on it that as well, like your self explanation. Movana. Acha, so there are a lot of things that happened to me that I realized later in life कि यार मतलब ये छोटे छोटे मजाक हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं that leave such a big impact on you and how you react to certain situations, how you become as an individual. And people, especially in university, I feel like they're very, most of them, or at least I was exposed to such people who are very insensitive, ठीक है, about certain things. May it be the smallest things, like अब मैं आप लोगों को एक example देती हूँ. So I've always been very good with balance. ठीक है, balancing my life, my work, balancing my grades and my very good in maintaining a routine. Yeah, and then again मतलब ये कभी भी नहीं होता था even बचपन में भी कि like अगर मैं खेलने जा रही हूँ तो मेरे grades पे भी ठीक आ रहे होते थे. I could study when I have to and then again also play with friends type scenes है. So I was always very good at it. तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि व्हेन एग्जाम्स केम, जैसे आपने अभी मेंशन किया था, तब आपको पता चलता है कि आपका असल दोस्त कौन है कौन नहीं है. एंड मी कमिंग फ्रॉम वो A levels वाला बैकग्राउंड, O levels वाला बैकग्राउंड, जहाँ पे हम बच्चों को ना बर्गर बच्चे तो नहीं कहूँगी, लेकिन हम वो बच्चे हैं जिनको चीटिंग ही नहीं आती. यू नो मतलब दे डोंट नो कि चीटिंग करनी किस तरह है या करानी किस तरह है. एंड हमें कभी ज़रूरत, मतलब मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में चीटिंग नहीं की थी, सही है. सो पहली बार हमारे एग्जाम्स आए एंड जज करिए नहीं, आई एम लाइक ऐसे भी लोग होते हैं. मैंने तो किया. मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती ना उसके बगैर शायद. नहीं और A levels में गाइस मेरे पास मतलब एक होता है ना कि माहौल ही नहीं था चीटिंग. आई थिंक जब आपने नहीं किया होता आपको बहुत डर लगता है. आपको बहुत डर लगता है. मेरे लिए हमेशा इट वाज इम्पोर्टेंट कि पढ़ो, एग्जाम्स दो, ठीक है, एंड देन अगेन इन पढ़ाई एज वेल आई वाज लाइक आई वाज आल्सो वेरी सोशल जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी, विच वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई मेट ओवर देयर. ठीक है, तो पहले ही वो इस बात पे थे कि यार ये तो बहुत मतलब ये तो हर वक्त फिर रही है, ये तो हर वक्त मतलब यूनिवर्सिटी में इधर कैफे जा रही है. अगेन अननेसेसरी स्टफ जो पीपल यूज टू से, जो कि मुझे उस वक्त नहीं लगता था मुझे अफेक्ट करता है, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड में इट इज़ अफेक्टिंग यू एंड यू डोंट रियलाइज इट. खैर एनीवे दैट वाज हैपनिंग. उसके साथ साथ एग्जाम्स आए, ठीक है. सो एक फ्रेंड है, उसको चीटिंग मैं नहीं करा सकी, ठीक है. ही स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी उस टाइम पे उसके बाद कि अच्छा यू नो वर्दा चीटिंग कराती नहीं है. As like she's one of those people जिसको बस grades चाहिए and she will not like you know how आपको I think बेहतर पता होगा because आप भी मेरी तरह टॉपर हैं क्लास की. and I was like मैं पहले तो मुझे था कि this is such an alien concept to me guys at first and then you know मतलब एक तो एग्जाम लग रहा है मेरे ऊपर से you know हंसी मजाक में और जाती थी वो चीज़. लेकिन देन अगेन इट स्टार्टेड बिकमिंग सो सीरियस दैट एवरी टाइम समथिंग वुड कम अप इट वुड बी लाइक कि अच्छा नहीं यू नो वर्दा इज सेल्फिश, ठीक है. इट स्टार्टेड टर्निंग इनटू दैट मजाक, क्योंकि वो इतनी बार हुआ कि people around us started having that image of me कि अच्छा maybe she's that selfish that she doesn't, ठीक है. and then as I told you guys कि I had always been that person जो I was good with balance, right? So I used to be going out with friends, going out with family and also the topper of the class, right? So जब मेरे पास कोई आता था कि like you know ये बता दो या वो बता दो, तो वो उनके दिमाग में और आता था कि इसको आता है but you know ये नहीं हमें बताती types. and I used to be like exams में and especially I'm sure कि आपको ज़्यादा पता होगा कि business में your questions are never like A and B या B and C, they're always like applied questions होते हैं, you answer on your own. हाँ, they put you in a scenario and they're like आप बताओ इसमें क्या, like open-ended questions आते थे बहुत ज़्यादा. तो उसमें I always used to be like मैं क्या बताऊँ लोगों को, एक तो चीटिंग आती नहीं, एक तो ये वाली चीज़. तो आहिस्ता आहिस्ता द रीज़न आई एम टेलिंग यू ऑल द डिटेल्स इज सो दैट यू नो कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ इस तरह बिल्डअप हुई कि पूरे ग्रुप में पूरी क्लास में दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस कि शायद वर्दा इज सो सेल्फिश या यू नो शायद वर्दा इज
अगेन बात किससे शुरू हुई, मजाक से शुरू हुई, एंड देन इट टर्न्ड इनटू समथिंग कि आप उसी से अगले की पर्सनालिटी को जज करना शुरू कर देते हो कि अच्छा ये करती है तो मे बी यू नो शी इज सेल्फिश, मे बी यू नो शी इज लाइक दैट. पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज ना, लाइक पीपल बी लाइक कि अच्छा अगर एक बंदा बस पढ़ रहा है ना तो ही उसको सब कुछ आता है. हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ पर्सन हु इज यू नो वेरी सोशल डूइंग सो मेनी स्टफ एंड देन गेट लाइक द परफेक्ट पार्टनर, और फिर उसके ग्रेड्स भी आ रहे हैं, उसके नंबर भी आ रहे हैं, और जब हम पूछ रहे हैं तो हमें बता नहीं रहे, तो डेफिनेटली समथिंग इज फिशी. ठीक है. तो लेकिन उस टाइम पे किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इसको या नहीं आता, या फिर यू नो शी रियली डज नॉट स्टडी एज मच एज वी थिंक शी डज, यू नो. क्योंकि मैं नहीं, आई वाज दैट पर्सन जो आखिरी रात है ना, यू नो, आई एम नॉट ब्रैगिंग और एनीथिंग गाइस, लेकिन ये सीन है कि लाइक आई एम रियली गुड विद हैंडलिंग सिचुएशंस, और उसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे. आई थिंक ये वाली चीज तो आई विल आल्सो रिलेट टू, और मैं इस पे लोगों के इस मोमेंट को यूज़ करते हुए लोगों को बताने में चाहूँगी कि यू नो इट्स नॉट अबाउट कि आपने कितना पढ़ा है और कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है पढ़ते वक्त. स्टडिंग इज़ नॉट अबाउट स्पेंडिंग कि आपने मैंने 7 घंटे पढ़ा है, मैंने 9 घंटे पढ़ा है, मैं पूरे हफ्ते से पेपर की तैयारी कर रही थी. इट डज़ नॉट मैटर. अगर आपने लेक्चर के टाइम पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे अपने, और आपको समझ में आ गई थी कि यू नो ये कहाँ कहाँ अप्लाई की जा सकती है इसकी एग्जाम्पल्स, देन इट्स एन ईजी वॉक फॉर यू टू अप्लाई दैट एट एनी गिवन कॉन्टेक्स्ट. It's always quality over quantity. और even before exam night, it's all about refreshing those concepts. It's never about के रट्टा मारना है. रट्टा तो मारा ही नहीं जा सकता. केस स्टडीज आती हैं यार एग्जाम्स में. यूनिवर्सिटी में तो आई थिंक बहुत कम सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स, एंड स्पेशली इन सोशल साइंसेज, यू हैव टू आंसर in a context जो कि आपको समझ में आ रहा है. Your answer and other person's answers can be completely different and both can be completely right. Subjective होते हैं. हाँ, बहुत subjective होते हैं. तो it's not about कि यार आपने कितना पढ़ लिया. मेरे साथ भी ये होता था, मैं नहीं पढ़ती थी यार. मेरे एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में अगर 10 दिन का भी टाइम हो ना, मैं नहीं पढ़ूंगी. क्यों पढ़ूँ? मैं नहीं अपने आप को 10 दिन उस चीज़ से गुजारना चाहती. मैं आखिरी रात बैठूंगी, मैं पढ़ लूंगी, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी, मैं जाके लेकर आऊंगी. ये लोगों को नहीं समझ में आती. बेसिकली यूनिवर्सिटी में वन थिंग आई फील लाइक जो शायद मेरे एक्सपीरियंस में था, विच वाज मिसिंग, वाज दैट पीपल अराउंड मी डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट समबडी कैन बी डिफरेंट. ठीक है, एवरीथिंग डज नॉट नीड, जैसे हमने स्टार्ट की कॉन्वर्सेशन विद दैट, when you go into university, you're surrounded by so many people with different personalities, different types of people basically. So it for some people is hard to accept that or realize that, and they think कि अगर उनके parameters से थोड़ा वो चीज़ निकल रही है तो this person's weird, this person's bad, and then again मजाक. ठीक है, दैट इज समथिंग दैट आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन कि मजाक जो होता है दैट इज ऑलवेज ऑन समथिंग दैट एग्जिस्ट्स. ठीक है, आई विल रैंडमली नॉट बी लाइक हे यू नो just kidding is never kidding. Yeah, so then again it leaves an impact on the other person, and you should not be insensitive. पता है इंटरेस्टिंगली मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि अगर मजाक में भी किसी ने कोई चीज़ 2 दफ़ा बोली है ना, इट मीन्स कि उसके जहन में या उसके दिल में ये बात है. वरना कोई एक ही मजाक 2 दफ़ा नहीं करेगा. सो अगर कोई चीज़ आपको मजाक में कही जा रही है एंड इट्स अ repetitive pattern, then it means somewhere something is wrong, like you know, and वो एमी नहीं कोई बोल देता. बिल्कुल सही, एमी नहीं बोल देता. and it's a form of bullying. It is. And then you realize that later on. मतलब जो मैं आप लोगों से आपको नहीं समझ में आती. हाँ, मैं जो आप लोगों से बार-बार कह रही हूँ ना कि मुझे उस टाइम पे चीज़ें रियलाइज नहीं हुई. I have always been that person guys जो कि कुछ गलत हो रहा है ना, ग्रुप में हो रहा होता था ना, तो I used to be like कि अगर लाइक फलां बंदी के साथ या ग्रुप के अंदर ही गलत हो रहा है, I used to speak up for her and I used to be like कि हाँ you know, and I am that way यार. मुझे नहीं समझ आता है, personality. I am that way. तो फिर मैं बोलती थी, and then मतलब ग्रुप में एक और चीज़ हो गई, लाइक ये पता नहीं क्यों बोल रही है. तुम्हारे साथ तो नहीं हो रही, तुम क्यों बोल रही है, ये क्यों बोल रही है. एंड देन अगेन मतलब एक और बात कि यू नो देयर वाज अ पॉइंट जब बाकी आल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग, एंड देन द बॉयज इन द ग्रुप स्टार्टेड सेइंग कि अच्छा इसने बाकी लड़कियों को खराब किया. अब पहले तो इनकी ज़बानें नहीं थी. And I was just like, bro. I'm like, still very childish. Yeah, so very immature. ये छोटे-छोटे experiences हैं जिनके बाद मुझे realize, and then at that time I didn't realize it. ठीक है, उस टाइम पे मैं चुप हो गई. You know, I stopped talking to them. I started not hanging out with them that much. लेकिन
it did leave that impact on me. In certain situations, I found myself जहाँ मैं पहले शायद openly I used to start conversations. I used to be very more open with stuff. हाँ, नहीं, definitely. I was more Definitely ऐसा ही होता है। यार देखो ना, conserved. अगर आप किसी के पास जाते हो, आप उससे कोई बात करते हो, अदर पर्सन डज नॉट मेक यू फील हर्ड, डज नॉट मेक यू फील सीन, डज नॉट मेक यू फील अंडरस्टूड इनफ, और उसके ऊपर ही मेकिंग फन ऑफ यू, स्प्रेडिंग लाइज अबाउट यू, स्प्रेडिंग थिंग्स, जो भी आपके बारे में बात की जा रही है, सॉर्ट ऑफ लाइक आपका मजाक उड़ाया जा रहा है हर जगह पे। सो आप नहीं जा सकते उन लोगों के साथ, आप नहीं बैठ सकते उन लोगों के साथ, आपसे नहीं बात की जा सकती है। आई एम रियली सॉरी दैट यू वेंट थ्रू दिस। एंड इस सब में ये भी होता है कि एट दैट टाइम आपको समझ भी नहीं आ रही होती कि आपके साथ ये हो रहा है। And the smallest things like commenting on your appearance, for example. Yes. अब अगर कोई था, I saw so many people comment on somebody's nose. ठीक है, अब आप इतनी बार जब वो मजाक कर रहे हो तो यार एट अ सर्टेन पॉइंट इवन वो बंदा या बंदी भी बोलेगा कि यार like Yes. bro, like what? This mean culture exists in universities where people Yeah, so- people think कि ये उनका right है बताना और judgment pass करना कि आज वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। comment And it's for no reason unnecessary- at all. This unnecessary need to comment on people's Yeah. features or their achievements or Yeah. whatever there is going on in their life, Yeah. right? I'm so sorry, Varda, that you went through this, and now I can completely understand that why it sucked. Yeah, and why every time the topic of university comes up, I'm like, Yeah. great thing है university. Yeah. Like, But I think in high, हाँ. but overall अगर आप देखें तो it only made you stronger. It Yeah, only it did. made you. Yeah. It only आपके सामने बहुत सारी personalities पहले से you have experience and now you know that I Yeah. cannot sit with these people. Yeah. जो चीज़ आपको शायद यूनिवर्सिटी में 5वीं 6ठी दफ़ा कमेंट में समझ आई कि no this is not right with me, now you won't give it like पहली दफ़ा में you will give it a shut up call कि no this is not fine with me. yeah. Don't cross that boundary. So it did work out in a very hard way, but yeah, university is supposed to be on the other side of it, like more chill, more fun, more different experiences. But obviously it was really bad, and But I'm university so sorry. but university is also supposed to teach you for the Yes. practical world, right? So And it did. हाँ, and it did, right? Yes. So आपको मे भी किसी और तरीके से सिखाया और मुझे इस तरह सिखाया गया, Yeah. the hard way. Yeah. आई थिंक ऐसे ये पूरी ज़िंदगी में ही आपको इस तरह के लोग मिलते हैं ना, बट जस्ट बिकॉज यूनिवर्सिटी में आपको हर चीज़ समझ आने लगती है ना, आपको पहली बार वो फ्रीडम मिलता है Yes. Yeah. ये सब कुछ समझने में, तो इट हर्ट्स मोर। लेकिन पूरी ज़िंदगी में ही आपको इस तरह के लोग मिलते हैं। हाँ, यू कांट लाइक शट अप एवरीवन जो भी कमेंट करे, यू विल जस्ट हैव टू नो हु टू ब्लॉक एंड इस तरह। I think university is the perfect point, क्योंकि यूनिवर्सिटी से पहले तो आपको समझ ही नहीं आती ना लोगों ने आपके साथ क्या किया। हाँ University में भी नहीं आती है। University is the point you start realizing Yeah. stuff. Yeah. And then after university, you are in a position where you're like, ये है. You're more Exactly. This works with me. This Yeah, not works yeah. with me. Yeah. How was your journey? Like you mentioned self, वो एक चीज होती है ना, like self discovery, and उसकी basis पे I think यूनिवर्सिटी और ही एक अलग तरीके Yeah. से hit बिल्कुल, करती है, that's so right? true. So tell us about your experiences. माई एक्सपीरियंस, बिकॉज आई स्टडी डिज़ाइन ना, तो आई थिंक कि भाई जो डिज़ाइन पढ़ रहा है ना, वैसे तो हर इंसान को सेल्फ रिफ्लेक्शन वगैरह वो आना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा बात आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है। लेकिन मुझे अपने वक्त में लगता था हमें लाइक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही टीचर्स ही हमसे ऐसे सवाल पूछ रहे होते थे कि वी वर लाइक, मतलब इसके बारे में भी सोचना होता है। इसकी वजह से लाइक आप खुद से ऐसे सवाल करते हो ना कि आपको पता चल जाता है कि आप एज अ ह्यूमन आप कौन हो, आप कौन हो, लाइक what are you as an individual। तो वो जो एक फेज़ आया था, दैट वाज इन माय सेकेंड ईयर, एंड आई गॉट सो स्केयर्ड टू द फैक्ट कि मैं अपने अम्मी अब्बू को लेकर गई टू द ऑफिस, एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, मेरा आप नाम कैंसिल करें, आई वांट टू लीव द यूनिवर्सिटी। Oh God, really? यार मैं घर गई और मैं बस एक बार रोना शुरू हो गई। सुबह जब वैन आती है उस वक्त तो मैंने रोना शुरू कर दिया, एंड माई मदर वाज लाइक, क्या हुआ? एंड मैंने कहा कि मैं आई जस्ट वॉन्ट टू लीव यूनिवर्सिटी, एंड शी गॉट सो कन्फ्यूज कि कभी भी ये नहीं आया, एंड वो इतना मुश्किल फेज़ आया था मुझ पर कि आई थॉट दैट आई जस्ट कुडंट डू इट। मुझे लगता था ऑल द पीपल अराउंड मी, उनको सब
अच्छा उनको सब समझ आ रहा है, मुझे ये एक लग रहा था अच्छा सबको पता है सब क्या करे, इट्स जस्ट मी left out. You feel like you're the only one who hasn't figured out your या एक वो भी डर होता था। और फिर मैं गई थी अच्छा सबने अपनी जिंदगी पूरी फिगर आउट कर ली एंड एवरीवन हैज जस्ट स्टार्टेड देयर सेकंड ईयर, लेकिन मुझसे वो हो नहीं रहा जस्ट बिकॉज कुछ सवाल इस तरह जहन में आते थे जिसका जवाब मेरे पास खुद ही नहीं होता था। तो ये हुआ था, बट देन आई ऑल्सो डिड रियलाइज दैट लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी आस्क मी कि अच्छा अगर तुम यहाँ ये छोड़ के जाओगी तो कहाँ जाओगी, बिकॉज आई हैव एन इंटरेस्ट इन टेक एंड गैजेट्स, और मैंने कहा कि आई गेस कंप्यूटर साइंस वाली साइड पर ट्राई करूँगी। एंड ही वेंट के यू थिंक लाइफ गेट्स ईजियर, एंड दैट हिट मी सो हार्ड कि आप जहाँ भी जाओ ना मुश्किल होगी, डिग्री मुश्किल होगी। यार आपके ना मुश्किलात will never end in your life. The way you deal with it and how easy you get with time is what changes. And I think कि उस वक्त से पहले ना जब भी मेरे ऊपर कोई मुश्किल आती थी तो आई यूज्ड टू अच्छा रन अवे फ्रॉम इट कि अच्छा बाद में देख लेंगे। That is never the solution. बट उस वक्त मुझे यू नो व्हाट दिस टाइम आई स्टार्ट टू फेस ऑल दीज डिफ़िकल्टीज और इनको सॉल्व करूँ। उसके बाद इट वॉज प्रिटी गुड। आई थिंक डिज़ाइन स्कूल में ना ये फ्रीडम की डिज़ाइन स्कूल है, सारे लोगों को पता होता है अच्छा व्हाट इज़ सेंसिटिव, व्हाट इज़ इनसेंसिटिव, ऑल दैट। तो दे आर एक्चुअली गुड पीपल। लाइक आई थिंक कि अभी भी जो एक मेरा कम्फर्ट जोन है ना, probably any time of my life अगर मैं इन लोगों के साथ बैठूँ ना, like they will kind of accept me wholly कि अच्छा ठीक है इसके साथ कुछ हुआ होगा शायद ये ऐसे हो गई है लेकिन इट्स ओके। लाइक देयर इज एन अनसेट अंडरस्टैंडिंग देयर। या एग्जैक्टली, लाइक एवरीवन इज सो ओपन। आप देखते हैं ना डिजाइन स्कूल में आपको लगता है बच्चे और ही जगह के हैं ना, तो दैट इज ड्यू टू द अलग ही बॉन्डिंग होती है। आई हैव सीन या वो इसलिए होता है कि दे जस्ट दे गिव पर्सनालिटी दे गिव अदर्स द फ्रीडम टू जस्ट बी यू। तो मुझे उस लिहाज से मुझे बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए, बट अ लॉट ऑफ लर्निंग like I was able to learn a lot, and I think अगर मेरी कोई character development हुई है ना तो यूनिवर्सिटी में ही हुई है। Oh same, I think मेरी तो सारी character development मैं सोचती हूँ इससे पहले मैं क्या थी guys यूनिवर्सिटी। Yeah, मेरे साथ ये था कि यार you know I can hard relate to your story is that मुझे यूनिवर्सिटी से पहले तक कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं थी मेरी। आई वॉज लिविंग लाइफ एवरी डे, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ गुड डॉटर, हर चीज़ कर रही थी, हो रही थी चीज़ें। आई वॉज वेरी नाइव, आई वुड से जस्ट यू नो वेरी हैप्पी गो लकी चाइल्ड टाइप होती थी, हर वक्त हंसती रहती थी, बस चीज़ें करती रहती थी, और उसका बहुत से लोगों ने फ़ायदा भी उठाया था। लेकिन बिफोर यूनिवर्सिटी आई नेवर रियली न्यू कि मेरे साथ ये हुआ है। आई नेवर रियली सैट डाउन एंड रिफ्लेक्ट ऑन दोज थिंग्स कि यू नो आई हैव वेंट थ्रू समथिंग दैट आई हैव बीन बुलीड इन स्कूल। आई नेवर न्यू बिफोर यूनिवर्सिटी दैट आई वाज बुलीड इन एग्जैक्टली। एंड इन यूनिवर्सिटी व्हेन आई से ना कि मैं एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रही हूँ, वहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं और मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आसपास लोगों को देख रही हूँ, मैं उन सब के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को देख रही हूँ कि लोगों ने किस तरीके से फिगर आउट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, आर दे फेकिंग इट, यू नो, वो सारी चीज़ें देख रही हूँ। एंड देन आई एम लाइक यू नो आई हैव टू फाइंड माई सेल्फ। एंड ये क्यों होता है? बिकॉज at some point, at some day, someone asks you a question you're not really, nobody has ever asked you before. Yeah, exactly. And it hit you कि मैंने कभी सोचा क्यों नहीं इस बारे में। That happens so much in the university. Like जगह जगह आपको ये feeling आती है, and then आपको hit कर जाता है। And then I was like, you know, I think I remember it was also my second semester or not. It was 2017 that I remember. एंड फिर वहाँ से जो मेरी चीज़ स्टार्ट हुई है, स्टार्टेड यू नो वो करना है कि अपने आप को फिगर आउट करना है, क्या नहीं है, क्या मैं हूँ, क्या मैं नहीं हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है, क्या मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वो सारी चीज़ें होती हैं ना। और उस वक्त आई थिंक जो आपने कहा है ना कि यू वांटेड टू लीव यूनिवर्सिटी, आई डिड नॉट वांटेड टू लीव यूनिवर्सिटी, बट आई वाज सर्टेनली एट अ पॉइंट जहाँ पे चीज़ें सही होने से पहले बहुत ख़राब होती हैं। लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, यू आर कॉन्स्टेंटली लाइक यू नो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में। एंड दैट इज़ वाई मैं और दोस्त बना ही नहीं सकी। मुझ में इतनी मेरा कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा था इंटरनल। I can relate to that so much. कि I was like, you know, these 3 people know me. Why would I go and make another friend when I'm not even feeling myself right now? I don't even know मैं हूँ कौन.
सो मैं नहीं जाती थी, मैं लोगों से इतना ज़्यादा बात नहीं करती थी. इसका मतलब ये नहीं था कि आई वॉज नॉट फ्रेंडली और अनअप्रोचेबल. आई वॉज वेरी अप्रोचेबल. मेरे लोग आते थे और वो जो सीन है ना कि एग्जाम्स होते हैं तो आपको पता लगता है कि लोग कैसे हैं और किस तरीके से वाई दे आर आफ्टर यू, एंड स्पेशली इफ़ यू आर वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो क्यों आते हैं आपके पास. बट मेरी लाइफ का पैटर्न ऐसा रहा है कि हर वक्त हर किसी को मुझसे मदद चाहिए होती थी. I was so used to being used कि उस टाइम पे इट डिड नॉट हिट मी कि ये मेरे पास इस वजह से आ रहे हैं. यू वांट माई रजिस्टर, दिस इज माई रजिस्टर, गो जस्ट गो, डोंट टॉक टू मी लाइक आई कैन नॉट हैव 5 or 10 minute pretentious conversation with you right now. So मैं उस पॉइंट पे आ गई थी where I could not pretend ना कि यार मैं आपसे मैं कर सकती हूँ 5 से 10 मिनट. When I could not, मैंने कहा यार चलो ठीक है, तुम्हें ये चीज़ चाहिए, प्लीज़ जाओ तो वो जाए. तो अगर मैं उस एंगल से देखूँ ना तो यूनिवर्सिटी लाइफ वॉज टफ बिकॉज आई वॉज फिगरिंग आउट सेल्फ. बट वो इस वजह से हुआ बिकॉज छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से यू फिगर आउट लाइक हाउ यू रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस, हाउ यू आर इन, यू नो. बिकॉज एक इंसिडेंट है बहुत फनी सा है, लाइक मैं आप लोगों को बताती हूँ. लाइक हम लोग ना, क्योंकि स्टार्टिंग में सब साथ साथ जा रहे होते हैं ना, तो आप सब साथ होते हो, आपके लंचेस साथ हो रहे हैं, यू नो यूनिवर्सिटी का क्या प्रेमिसेस इतने बड़े होते हैं कि आप चलते चलाते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते होते हो. और इस वक्त आप एक्टिव भी होते हो, थोड़े से हेल्दी भी होते हो, तो खैर आप चले जाते हो. तो एट वन पॉइंट वी वर एट डिफरेंट, एक हमारा कैंपस से थोड़ा दूर कैफ़े है, हम वहाँ तक चले गए थे. वी यूजली यूज टू गो एंड वहाँ वो हमारा अड्डा होता था, हम वहीं पे बैठे रहते थे. सो हम वहाँ चले गए और हम वहाँ से मतलब बैठे हुए हैं, सब कर रहे हैं ये वो. अब क्या होता है ना कि हर कोई बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आया हुआ होता है और हर किसी के लिए कुछ चीज़ें निगोशिएबल होती हैं, कुछ नॉन निगोशिएबल होती हैं. लाइक मैं किसी को तुम नहीं कह सकती. Oh my God, same Yusra. ठीक है, why are we so similar? Like if I'm meeting you for the first time and मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूँ, मतलब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा है ना, फर्स्ट फ्यू इंटरेक्शंस हो रहे हैं, मैं आपको तुम नहीं बोल सकती. It's not something that I will do. मेरी बहुत लंबे अरसे तक दोस्ती जिनके साथ चली गई ना, उनके साथ मैं अब तुम भी हूँ. बट some people are like तू in the very first communication. मैं इसके बाद अपनी भी experience and that's something that's not right with me. That's something that's very disrespectful for me because I will not do that, so I will not expect कि आप मेरे साथ भी करें. ठीक है, so अब ये वाली चीज़ थी. So हम बस वैसे पता नहीं चल के जा रहे थे, कुछ हो रहा था. तो there was this one girl who वैसे चलते जाते उसने मुझे पता नहीं कुछ बोल दिया कि तू ये कर लेना और ये वो करके इस तरीके से. मैंने वैसे ही वहीं पे उसको आराम से ना बोल दिया कि सी आई डोंट लाइक दिस वर्ड तू, तो आप मुझसे तू करके बात मत करना. ठीक है, ये मैं कह के मुझे लगा मैंने सिर्फ कह दिया. इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लाइक इट वोंट किसी को इतना बुरा नहीं लगना चाहिए. इट्स नॉट अ बिग डील. या यू आर क्रिएटिंग योर ओन बाउंड्रीज एंड अदर पर्सन शुड रिस्पेक्ट इट. अब होता ये है कि वो दिन तो ख़त्म हो जाता है. अगले दिन जब मैं सुबह आती हूँ ना, तो द होल क्लास नोज दैट युसरा हैज शाउटेड ऑन समवन कि उसको तुम ना बोलना ये वो, और आप करके बात. Okay. I was like, oh my God, I was like, it's not so that bad. big of a deal. I just said in a very straightforward, in a very respectful manner कि आपसे मैं आप करके बात कर रही हूँ, आप मुझसे तू करके बात ना करें. मुझे अच्छा नहीं लगता. इसमें कोई I just wanna add over here कि यूनिवर्सिटी में एक चीज़ that I forgot saying पहले भी, अगर if you keep a boundary ना, तो that is like कि ये तो बहुत अजीब है. Yes. Always. ये बदतमीज़ है, ये अजीब है, ये and especially if girls do that, ठीक है, तो वो हमेशा से they'll be labeled as कि अच्छा अजीब सी बिगड़ी टाइप कोई लेबल आ जाता है, attitude, and एक और भी है, but at that point the reason मैं ये कहानी सुना रही हूँ इसके मुझे उस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि oh wow, I'm a very straightforward person in life. I will not take shit from people. You won't take shit. Yeah, if I have to, if something is not right with me, I will say it. That I realized in university. कि it was a very small incident, but I stood up for myself. Just counted जो हुआ ना, yes, जो चला आगे, उसकी वजह से you realize. इस पे मेरा भी, मैं आपको एक वो बताती हूँ एक्सपीरियंस, फिर हम आगे चलते हैं कि यही तू वाली चीज़ जो है ना, सबसे पहले तो आई वांट टू टेल एवरीबडी दैट इट्स सो वियर्ड दैट मी एंड युसरा आर सिमिलर इतने ज़्यादा वेज में. इट्स जस्ट अनकैनी गाइज. बट एनीवे, सो मैं ना आई हेटेड द वर्ड तू, एंड like my friends were always like, especially girls, they were like तू ये कर दे, तू वो कर दे, and I used to be like कि यार it's not that, मतलब I know girls do that, I know boys do that, whatever, लेकिन वही जो आपने बात की है कि एक डिसरिस्पेक्ट लगती है, and it's not about कि आपके दोस्त हैं जितने मर्जी हैं, आप
तुम एंड आप इज स्टिल बेटर, ठीक है, लाइक तुम इज स्टिल बेटर. Yeah, I find Tu आप is so respectful. Yeah, so but- respectful. and that is what actually matters. आप इंसान के दोस्त तभी होगे जब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो. Thank you Yeah. so much, Iza, for saying this. Yeah, and then like तू तो बिल्कुल ही वो आउट ऑफ माई बुक्स वाला चीज़ थी ना. एंड एवरी टाइम दैट हैपेंड कि मैं उनको बोलूँ कि यार यू नो व्हाट इज़, और मैं ऐसा होती थी कि यार व्हाट इज़ तुम कह लो चलो फिर बेहतर है, या फिर आप कह लो. तो आगे से ना दे यूज टू स्टार्ट, वो एक होता है ना चिढ़ाना कि अच्छा तू मतलब यू नो yeah. मतलब. एंड देन ना मुझे No, और that's मतलब not आई डिडंट nice. से एनीथिंग बट आई यूज टू बी लाइक कि यार मतलब just It's not accept nice. it and just Yes. be like कि अच्छा ओके हम you know ये कह देते हैं तुम्हारे लिए. बट नो, it was never like that. And then मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी जिसके बाद लेटर ऑन आई रियलाइज दैट दे वंस कॉल्ड मी कि अच्छा यार तुम तो हमें हर वक्त मतलब रोकती रहती हो कि अच्छा तू ना कहो, तू ना, यू आर सो बॉसी. एंड आई वाज लाइक हाँ, ऐसा होता है. I've been labeled the same for speaking up for myself. see guys like we are so similar like you know. नहीं, और ये हर किसी के साथ होगा. I think I'm sure this is every girl's story that who stood up for themselves. yeah, and it's true. not even about Even standing Proudy- up your Proudy. हाँ, you're just saying कि मैं भाई ऐसी मुझसे हूँ. मुझे नहीं बोलो. हाँ अगर मैं आपको कह रही हूँ मुझे ये नहीं बोलो, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? नहीं, you're bossy. Yeah, you're creating boundaries. पता नहीं क्या The समझ रहे level हो of खुद को. mature in universities though मतलब it's Yeah, and then I think इस तरह के बहुत से छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो जाते थे जहाँ पे कुछ बोल दिया और लोगों को समझ में नहीं आई. लाइक आई रियलाइज इन यूनिवर्सिटी कि पीपल के देयर इज अ थिंग कॉल्ड देयर इज अ थिंग बीइंग लाइक टू फेस्ड. Yeah. आई वाज नॉट लाइक आई थॉट कि जो इधर है वो बाहर है. वो हाँ, जैसे same आप होना चाहिए ना. जैसे आप हो आप वैसे हाँ, करोगे. खुले You don't डुले have उसी to- तरह हो, हाँ, but you नहीं. don't have to pretend, you don't have to hide, you don't have to be like you know मैं ये हूँ इनके सामने, ये नहीं हूँ इनके सामने. But that I realize in university that people create an image and live that image जबकि वो होते नहीं हैं. Just because they want to look part of the culture. That's so they true. They want to fit in so much that they create a fake image, like create a fake, like fake भी नहीं, I don't know, an alter image कह लें कि वो होते नहीं हैं. अगर आप हो ना, there's nothing wrong in that. But just to be someone to fit in, it's something जो कि हमारे peers बहुत struggle करते हैं. to be बहुत yourself in the Yes. university is something that I feel like only 10-20% people do, and they end up getting hurt, they end up getting you know क्योंकि it's a thing in Used. university हाँ used Yeah. कि you know it's not acceptable if you're a certain way, and that's something that we don't talk about much, but in every friend group and in every person who has been to a university can relate. I think very few people, I would say very honestly, क्या बहुत से कम लोग हैं इस मुल्क में एटलीस्ट जो कि जिनको एक तरीके से प्रिविलेज मिला यूनिवर्सिटी जाने का, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से बाहर अपने आप को ढूंढ के नहीं निकल सके. Yeah. They are still in those shackles, the prison of that, you know, just to fit in. बहुत अनफॉर्चुनेट बात है. लेकिन मेरे लिए सबसे फॉर्चुनेट इंसिडेंट बी योर एक्सपीरियंस, बी योर एक्सपीरियंस और बी माइन एक्सपीरियंस इज द फैक्ट दैट वी वर एबल to find Ourselves as an individual. Yeah, that's so Yes. true. We did. yes We really to did. find yourself, because like you said, there is no going back once the education is finished. Yeah. There is no going back, honestly girls, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ख़त्म हुई आपकी वो एजुकेशनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट्स. एंड जब वो स्टार्ट होती है ना तो Professional और बहुत शादी. यस वो फुल फोर्स के साथ आती है. Exactly. You can't even take a break when you want to. Yes. और उस टाइम पे टाइम नहीं है आपके पास टू बी इन दैट जोन कि यू नो आई विल वर्क Figure ऑन yourself out. पीपल डू एंड आई एम हैप्पी फॉर देम. एंड आपकी चेंज, आपकी एवोल्यूशन होती रहती है, दैट इज ट्रू, आप करोगे, लेकिन एक बेस तो सेट कर लो. समझो, इफ यू आर गोइंग इन टू यूनिवर्सिटी, प्लीज अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ इट. Yeah. That you have to develop that critical thinking, that you have to develop those boundaries, that you have to किसी और के साथ नहीं, बस इंडिविजुअली देख लो कि what is right for me and what is wrong for me, what I like, what I don't like, what kind of people are my people and what kind of people are not my kind of people, what I'm okay with in life and what I will never do in life. These are the smallest things. अगर आप कर लो ना तो I think that's the most fortunate thing one can do Yeah. when they enroll in university. Because बहुत अफसोस की बात है कि आप यूनिवर्सिटी में 4-5 साल गुजारो एंड आप में डिफरेंस नहीं आया. Yeah, that's
That's so unfortunate, guys. बहुत अफसोस की बात है. If someone brags ना कि I'm the same person as I was when I entered university, no, you're a loser. Yeah. Who could not work on themselves. Because अब आपके experiences अच्छे होंगे, आपके experiences बुरे होंगे, आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जो एक प्रोसेस है ना जिससे आप गो थ्रू करते हो बाय बीइंग अ वेरी सोशल पर्सन इन यूनिवर्सिटी, ज्वाइनिंग सो मेनी क्लब्स, ज्वाइनिंग सो मेनी, वो जिस तरीके से आपने किया, इट ओनली हेल्प यू फाइंड योर सेल्फ. लाइक अब देखो, यू आर इन आर्किटेक्चर, enrolled in architecture, but you're also exploring photography, videography, and I think बहुत सारी चीज़ें about yourself you could only find out by spending time with people who are interested in photography and videography, right? आपको आर्किटेक्चर वाले एरिया में वो अनसेट अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई. पीपल नो कि ये भी आर्टिस्ट बंदा है, मैं भी आर्टिस्ट बंदा हूँ, मैं नहीं पूछ सकता. वी आर ऑल काइंड ऑफ क्रेजी, राइट? वी आर ऑल काइंड ऑफ, यू नो. और आई थिंक आर्ट स्कूल या आर्ट डिपार्टमेंट इज़ द ओनली डिपार्टमेंट अनफॉर्चुनेटली जो कि ओपनली इस एजुकेशनल सिस्टम में डिफरेंसेस को प्रमोट करता है. राइट, बाकी तो सारे डिपार्टमेंट इज लाइक ये है आपकी एग्जैक्टली, यू हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन. या इट्स ये आर्टिस्ट वगैरह ये वाली फील्ड्स है, एंड देन यू हैव बाकी सारा विच इज़ फुल द सेम एज FSC एंड A levels. मतलब नथिंग चेंजेस, इट्स जस्ट इंस्टीट्यूशन चेंजेस, लेवल ऊपर चेंज हो जाता है कि अच्छा कॉलेज की जगह आप ये यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा पढ़ाई है, अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम दे रहा है. Not from that background like me is then suffering. Yeah, but with your experiences, I think you can highlight these points better. That ऐसा क्या हुआ होता, या फिर what kind of people you think if you had found, so your experiences would have been better. Like how to be a good friend. Like if someone is watching and they want to be a better person, they want to be there for people, what are the points that you can tell through your experiences? Yeah, so the first thing being that you should be more accepting of the fact that the other person can be different, or can think differently than that's very important. कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि यार it's okay. It's very normal अगर अगला बंदा आपकी definition पे नहीं जाता. हाँ, exactly. And this unnecessary need to correct the other person, ठीक है? Unsolicited standards हमने set कर लिया है ना? That should not exist in you. ठीक है? If you want to be a good friend to the other person, understand that is a different person. ठीक है, and he or she is going to react to situations differently than you will or you ever have. ठीक है, the first thing, if I'm in a certain situation and if I tell my friend, और आगे से मुझे friend आके ये कहे I don't understand why you did this, या I don't understand, you know, कि ये क्यों हो रहा है, so that's not something that I want to hear उस time. ठीक है, you just want to be listened. Right? And then again, a friend is supposed to listen to you, and then if there's an advice needed उस time पे, according to the situation, give it, and sometimes don't give it. I think the best way is the best way to be a good friend, like in this point, is to just straight ask the other person. What do you want me to do for you right now? Do you want me to tell you something, or do you want me to just listen to you right now? And your answer will be there, and you know how to act. Like you don't have to assume things. हाँ, ये मेरा अगला पॉइंट है कि stop assuming things. Just clear out your communication with the second person. Stop assuming. जो है दिल में आप पूछ लें उससे. That is how you can clear out your differences. That is how you can make an image of the person that you're trying to be friends with. Yes, so true. And I think creating boundaries, like दोस्तों की आपस में बहुत ज़्यादा बनती है, और फिर कभी कभार दोस्ती में लोग people do like they surpass boundaries, और फिर वो उसको माइंड, और वहाँ पर दोस्ती टूट जाती है. अगला जो इंसान अगला इंसान ने माइंड, यार बात नहीं थी लेकिन अगला इंसान माइंड कर गया. एक्सीलेंट पॉइंट. यू नो आई फील लाइक जब आप बहुत किसी के क्लोज हो जाते हो ना, तो आप अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं, और फिर जब अगला क्रॉस करता है ना तो आपको बुरा लग जाता है. वाइल एट द फर्स्ट थिंग आपको ये करना चाहिए कि यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट योर बाउंड्री. डू नॉट लेट अदर पर्सन क्रॉस दैट बाउंड्री. लाइक अब मेरा ये सीन है कि मुझे पता है कि मुझसे मजाक बर्दाश्त नहीं होते ज़्यादा. आई नो आई एम अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड. तो मेरे से अगर कोई मुझे एक दफ़ा भी मजाक में कुछ बोलेगा ना तो इट कैन हर्ट मी. सो मैं मजाक करती नहीं हूँ लोगों के साथ.
आई नो कि अगर ये किसी ने वो चीज़ जो मुझे पता है कि अगर किसी ने मुझे बोल दी ना तो मेरी सड़ जाएगी, तो मैं किसी को नहीं बोलूँगी वो. सो दैट इज़ वाई आज तक किसी ने मेरी कोई बाउंड्री वो नहीं की. कोई मुझे कुछ कह ही नहीं सकता जब तक मैंने किसी को कुछ कहा ही नहीं है. सो आई थिंक people what they do is कि in being friendly, be it professional environment or personal or friendships or जो भी, वो boundaries blur कर देते हैं. And then sometimes they would say the smallest of things like, you know, कहना तो नहीं चाहिए, but why did you do that? जब कहना तो नहीं चाहिए आ गया ना, तो इसका मतलब खामोश रहो. हाँ, but मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन why did you do what you did? Like sometimes the other person does not need to explain that to you उस particular situation में कि why they did what they did. I think very important is to let some things go. That is also very important कि अच्छा यार वर्दा ने कर लिया ना, ठीक है, she has her reasons, just let her do what she did. इस बात पे I wanna add कि हम जिस बात करें कि like how to be a good friend, तो उस situation में देखना कि अभी इस time पे that person is sensitive, ठीक है, that person is feeling certain things, तो you let go of certain things कि अच्छा अगर इसने ये किया तो क्यों किया, या अगर इसने you know गलती हो गई इससे, या चलो okay whatever, उसको रख लो and then बाद में bring it up when she or he feels a little better. Yeah, I think you have to be very mindful कि you know अगर कोई किसी तरीके से react कर रहा है तो obviously the other person is triggered ना किसी वजह से, तो आप अभी कुछ भी कहोगे तो that will only make things worse. fuel करेगी उस चीज़ को. तो उस टाइम पे बस ये समझ जाओ कि अगला बंदा react कर रहा है ना, it's not against me. It's clearly something else. So आप वहाँ पे like you said, let it go, right? हाँ, exactly. Let it just go. It's not about you. I think the one thing that people just need to realize, that I realized after university, is the world does not revolve around me. ठीक है? The world does not revolve around me. So anytime you think that it's about me, no, it's not about you. ठीक है? And just overthinking it कि यार इसने ये कहा तो अच्छा ये हुआ. हाँ, मतलब it's not about you. The other person can be going through so much. So you just need to be very careful and mindful and be a very active listener. I think we can all try to be good friends. Like we might be, but we can always try to be better. हम भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कह जाते होंगे, and obviously ऐसा तो नहीं है कि हम किसी की स्टोरी में सेंट और किसी की स्टोरी में विलन नहीं है, मतलब हम हैं. For some people we are the kind of people जिन्होंने हमने भी कोई बात ऐसी कर दी होगी कि अगले बंदे को हर्ट की होगी. So I think like the reason why I ask you this is because if you have good people around you, any time can be the best time. Right? Any experience can be the best. You can maneuver through so many hard times or difficult times just if you have good friends. Understanding friends who are there for you and who also understand that it's okay. जो कुछ भी चल रहा है. I think यूनिवर्सिटी के बाद जब लाइक समर वेकेशंस आती है ना, अब यूनिवर्सिटी के दौरान आप जो भी आउटिंग्स करते हैं ना, दैट इज़ विद योर फ्रेंड्स. और फिर जब समर वेकेशन इस तरह का गैप आ जाता है ना, यूर लाइक वेयर आर माई फ्रेंड्स, व्हाई एम आई अलोन, तब आपको इतनी उनकी इंपॉर्टेंस फील होती है ना, व्हेन दे आर नॉट प्रेजेंट. एंड दैट्स नॉर्मल कि अगर एक चीज़ एब्सेंट हो जाए ना आपकी ज़िंदगी से, तब आपको उसकी कदर हो. ऐसा ही कभी कभी सुकून भी आता है. In your experiences, कभी तो सुकून नहीं आएगा. कोई ना, मतलब आप दोनों ये like relate. No. I think you need those gap. You need those distances to realize कि where those people stand in your life. To have that feeling कि सुकून आ रहा है या मिस कर रहे हैं is through that realization कि where they stand in your life. Exactly. अगर आपको उनकी absence से फर्क ही नहीं पड़ रहा तो damn, they're not your friends. They're just people you are spending time with. Right? And I think whenever you say university, friendships तो आप निकाल ही नहीं सकते ना उससे. Friendships are it's all about friendships. Good friendships or bad friendships. Experiences. Good experiences, bad experiences. University is never about the degree. Degree is something that you get as a celebratory thing where by the end of your, like, I'm serious. LOL guys. I realized I spent so much time stressing over my grades, and now I'm realizing two years after my university, I can say this with guarantee, guys, that GPA does not matter. Oh, it does not, guys. The stress that you want to go into academics, right? You want to go abroad. Yeah, so tab. But
overall it does not matter, like the stress that you have right now, that जिसकी वजह से you become snake, जिसकी वजह से you become You burn so many people for exams you and hurt stuff. those people, you know you Not back worth it, guys. you go behind those people, it's not worth it. It's definitely not worth it, because वो सिर्फ एक piece of paper है guys जिसके लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं. It's actually the relationship, the connections, the network that you make throughout those 4 or 5 years that's what matters. Exactly. Yeah, because now you know आपने भी पढ़ लिया, आपके साथ वाले भी ग्रेजुएट हो गए, Yeah. सब हो गए ना ग्रेजुएट, कोई फर्क नहीं पड़ा. Now you know that I do not want to sit with this certain kind of people because No. they showed their true colors. but it's nice how यही stressing over the grades और फिर papers में अच्छे number लाना, this helped filter those people out that you don't want to be part of your like regular life. Literally. हाँ यार ये It's true कि एक्चुअली में जब आपने पढ़ाई के लिए पे ध्यान दिया, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, तो लोगों ने असलियत दिखाना शुरू कर दी कि तुमने तो ये बोला था कि and तुम्हें then again अगर if you look at it that way, literally every experience taught me something. Like every taunt, every mazak, every hangout, everything. It's a new learning experience every day for you. I'm sure, right? For sure. And yeah, shout out to my friends who made my life really really interesting. Seriously, मेरी तो university life is about those 3 people. I don't know what happened in class. I don't know what happened outside of class. My life is all about, my university life was all about those 3 people. You know, हमने ये करना है, हम ये करेंगे. यार guys, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, एक क्लास से पीछे, एक क्लास और दूसरी क्लास में अगर 15 मिनट की भी ब्रेक है ना, हम कराची कंपनी होते थे. चले जाते थे 15 गोलगप्पे खा के आते हैं, आओ ये करके आते हैं. Like I think it's the same for the other 3 people as well, that we 3 were their entire वो कि हमें पता ही नहीं था, हमें नहीं फर्क पड़ता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. And I think because of that time it gave me वो वाला वक्त के just to work on myself, become the person that I am today. What's right with me, what's wrong with me. एक छोटी सी बात है कि like something that हम लोगों ने शायद बचपन में इग्नोर की होगी, या something that we didn't take seriously as much. हमारे अगर पेरेंट्स हमें कहते थे कि your friends shape you into who you are. आपकी सोहबत बहुत important, आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है. We've never really focused on that enough, but they were right. Yeah. It really does change you. It does. Yeah, it does change you. जब आप 9 से 5 like how many hours are these? 8 घंटे. यार जब मैं आप 24 ही लगते थे तब तो. यार लिटरली 12 घंटे साथ होती थी उन लोगों के, एंड देन बाकी 12 फोन पे गुजारते. हाँ, घर में जाके भी ग्रुप्स होते थे एंड ऑल दैट. और मेरे घर वाले परेशान थे कि तुम इन्हीं से मिल के आई हो ना. अच्छा, उनको नहीं समझ आती अभी तो अभी आए हो. एंड देन आई वाज लाइक नो. यार यहाँ पे ना आपने जैसे शाउट आउट दिया अपने फ्रेंड्स को, आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू माई सेल्फ being so strong friend of yourself and getting out of that situation. And I think Izzat, the one last year that you have left, I think make the most out of it, because life changes after university and very drastically. It's not even कि अच्छा अभी मैं आपको समझ भी नहीं. मैं अभी 1 हफ्ते का गैप लेती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैंने क्या करना है. देखना तो टाइम नहीं मिलता. टाइम नहीं होती. लाइफ ऐसी फास्ट पेस्ड होती है कि फिर आप you want to sometimes you want to slow down, but it's not in your control. It's not. Yeah. So I think you still are very lucky that you have 1 year left. I think so. And based on your experiences, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है वरदा. हर किसी का मेरा जैसा experience. उसको अच्छे लोग मिले, उसको सेल्फ डिस्कवरी का मौका मिला. She got to be part of so many societies, and she is doing great, I think. And आपने देखी है ना I did all of that too, by the way, मेरी university में. It's not like I didn't do that. I stopped myself from that. लेकिन it's just that along all of that, like थोड़ा it makes perfect sense, Veda. It's just like that when you know that the people that you're sitting with and doing everything with are not very sincere to you, and will cross you over anytime they get.
you can't be at peace. Yeah. You don't want to relive those times. You really want sincere people with you, right? So वो और हमारी तो यूनिवर्सिटी का ना मतलब एक ही चीज़ थी जो मुझे बहुत पसंद थी, और जो मतलब मैं कहती हूँ कि अगर मैं अभी भी जाती ना तो उसके लिए शायद मैं चली जाती, वॉज आर कैफे, एंड वो उन्होंने तोड़ दिया. The only good memories that I have were in those cafes, और वो 2 थे हमारे जो साथ थे, एंड वो उन्होंने तोड़ के उन्होंने एक बहुत I modern think cafe is as important part as classes, right? So cafe में भी attendance लगती थी. if anybody from ComStats is watching this, they could relate because we loved that cafe. But anyway, guys. So अब तो मतलब कि life में तो एक चीज गिरी जाती है. नहीं, कोई ना मतलब वो मीम याद आ गया मुझे जिसमें वो फ्रेंडशिप एंडेड होता है ना, मेरा with ComStats और नादिर साथे ended now. And like we are तो done. Like what are your plans for like this 1 year? Like how do you want to spend this 1 year? Like what are you looking forward to the most? Having the lasts of everything. I did not get to have the last of everything. Same, no regrets. Like so much. अच्छी तरह से सबको हर चीज़ को ना, हर एस्पेक्ट को लाइक बिड फेयरवेल. मुझे इस तरह लगता है कि यू नो यू शुड बी कंटेंट, यू शुड बी सेटिस्फाइड व्हेन यू आर क्लोजिंग अ चैप्टर. मेरे इर्द गिर्द एज आई सेड के 4th ईयर वाले थे, 4 साल वो डिग्री पूरी करके चले गए, तो लॉट ऑफ देम आर स्टिल क्राइंग. ठीक है, दे हैव देयर ओन रीजंस, बट I would want to be the person who is happy and content with acha university ended on a good note, now let's move on to the next chapter, which is like professional life. Yeah. So I don't want to be that person जो कि सोचे कि अच्छा यूनिवर्सिटी में ये भी करना था, ये रह गया, ये भी करना था, ये रह गया. तो आई कैन लाइक ग्लैडली से कि अच्छा यूनिवर्सिटी में ना बहुत कुछ जो मैंने प्लान किया था ना वो मैंने कर लिया. आई एम प्रिटी गुड एट दिस पॉइंट कि अच्छा अगर वो कह देना कि अच्छा आर्किटेक्चर 5 की जगह 4 साल की हो गई तो मैं कहूँगी चलो ठीक है ग्रेजुएट हो जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने ट्राई कर लिया. इट वॉज अ वेरी लाइक फास्ट राइड आफ्टर कोविड, उसके बाद सब कुछ ही किया, एंड नाउ आई एम लाइक फाइन विद जस्ट टेक इन द बैक सीट. लाइक मैंने अब इस साल का कर लिया है, डिसाइड कर लिया कि आई वोंट बी एज एक्टिव इन यूनिवर्सिटी की जो को करिकुलर वाली चीज़ें हैं. तो आई विल बी मोर फोकस्ड ऑन जस्ट एनालाइजिंग एंड सीइंग एंड एंजॉयिंग इट फ्रॉम द बैक सीट. Oh, that's sweet. That's wise actually. That's very wise of her. She's very wise. हमसे तो ज़्यादा ही है. हमसे ज़्यादा ही लगती. Yeah, and surprisingly none of us are like hostelites ना. No. Yeah. We were day scholars. Yeah. And hostelites की तो अपनी stories होती हैं when it Hostelites की comes to अपनी university, story. Yeah. right? You know they Can't even imagine being in hostelite with all of this though, guys. I was just about Too to much come to drama. that point. You know, there's too much drama in hostel. You know, Yeah. hostel life as well. कि कौन रूममेट है, बन रही है, नहीं बन रही, किस तरीके से roommates थी. और फिर and then setting boundaries Yeah, are oh roommates. my god, Yeah. and you know, yeah, और वो किचन भी एक कंबाइन होता है, कुछ चीज रख दो घूम जाए. Like I've heard stories. Obviously, I've not Straight lived night it. especially बहुत stories सुनी हुई है मैंने, but Yeah, so unfortunately, none of us like you know here are hostelites. But अगर होते fortunately, Yusra. नहीं for the audience who did not Oh, get to yeah. get experience or hear those stories. Yeah. So वरना हमारे लिए तो fortunately we didn't, you know. But I think living in a hostel is another level of your personal development. Yeah, You learn a true. lot Yeah, of stuff. oh God, very You know, so I वो do तो want आप to रह experience. के देख रहे हो, Yeah. सीख रहे हो. अभी तो हम घर आ जाते थे ना. Yeah. So वो एक part है जो कि हमने experience नहीं किया. But this was some of the crux we can say, like some of the. अच्छा, so I'd want to ask कि अगर एक Yeah, लफ्ज़ में if you could sum up your university life in one word, what would that be? What would word that be? Varda, Friendship? for you? For me, yes. It was friendship. आपके लिए वर्दा? I think I won't even Varda. say by the end of it that it was. myself. मैं एक वॉइस निकालना चाहूँगी. What will be the word for you? Opportunities. That's a good To word. be very honest, I would also say opportunities though, because I did get a lot. University. आई थिंक वैसे आप गौर नहीं करते जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, आपको एक्चुअली नहीं पता चल रहा होता कि इस यूनिवर्सिटी में रह के मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. एज सून एज यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल बाकी यूनिवर्सिटी से, तो फिर आपको पता चलता है यार मेरी यूनिवर्सिटी में ये भी है, तब आपको पता चलता है कि having like that university, being a part of that university is such a blessing. Yeah. One more thing that अगर मैं कहूँ तो that would be patience. I learned how to be patient. I think I learned how to be more accepting of others. Yeah.
to be okay with something that's not your okay. Yeah. That's something that I learned. I started वो वाली चीज़ के, because I think यूनिवर्सिटी से पहले we all are at points जहाँ पे हम somehow rigid होते हैं towards ideas. And we don't realize that others' definition of the same thing can be different. Yes. So और वो इसी वजह से है, because in school, in colleges हमें पढ़ाई हर चीज़ बहुत यूनिफॉर्मिटी के साथ जाती है. It's like we all are same. हम जो खड़े होंगे तो हम सिमिलर लगेंगे, हम चलेंगे तो हम सिमिलर लगेंगे, जो पढ़ रहे हैं हम सिमिलर हैं. जब आप यूनिवर्सिटीज़ में आते हो तो आपको पता लगता है कि दुनिया बहुत डिफरेंट है. एटलीस्ट आपको जो पता है उससे बहुत अलग सी दुनिया, बहुत सारी अलग दुनिया बसती हैं. सो आप वहाँ जाते हो, आप लोगों को देखते हो, आप बहुत सारी चीज़ें फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, आपके बहुत सारे फ़र्स्ट यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं. एंड देन आप कनेक्शंस बनाते हो, आप नेटवर्क बनाते हो, आप स्किल्स भी सीख रहे होते हो. ऑब्वियसली सब कुछ साथ चल रहा होता है. बट फॉर मी, इफ़ आई हैव टू से, यूनिवर्सिटी विल ऑलवेज बी अ प्लेस जहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है. बाकी सब टाइम अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट नहीं कर पाते ना तो इट्स योर लॉस. इट्स डेफिनेटली. So that's a question. आप यूनिवर्सिटी में किया ही क्या है. Yes. Like पढ़ाई से ज़्यादा it's more about yourself. यूनिवर्सिटी what are you taking out of it? यूनिवर्सिटी ना आपको बहुत सारी जिंदगी की फिलोसफी सिखाती है. ऐसी वैसी बहुत सिखाई है, बहुत फिलोसफी सिखाती है. तो यूनिवर्सिटी इज़ द प्लेस जहाँ पे आप जिंदगी का फ़लसफ़े सीखते हो. और वो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज लाइक यू सेड, अगर नहीं किया तो फिर किया क्यों? मतलब क्यों आए थे यूनिवर्सिटी? ना ही आते, माँ बाप का पैसा ना ज़ाया करते. आई रिमेंबर जब मैं यूनिवर्सिटी में पहली बार आई थी ना, तो आई हर्ड ऑल दीज कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती थी. एंड व्हेन आई यूज्ड टू हियर, आई वाज लाइक, ये क्या बातें कर रहे हैं? आई कैन नॉट रिलेट टू देम. आई एक ना वो जो एक आप कह रही थी ना रिजिड का, मुझे इस तरह लग रहा था कि यू नो वॉट, आई कैन नेवर बी वन ऑफ देम. हम कभी सेम उस पर हो ही नहीं सकते प्लेटफॉर्म पे. पता नहीं ये इनके क्या फिलोसफीज़ हैं. एंड वो अब टॉपिक्स ही ऐसे थे, like 3 years down the lane, we are speaking the same language. I'm exactly speaking the same. और फिर मैंने सोचा कि you know what is तुम एक certain mind के साथ आई थी यहाँ पर, and you were so wrong, and I need to be accepting of the fact that जो बाकी लोग कह रहे हैं, जो आप सोच रहे होते हैं ना, अच्छा ठीक है, अच्छा उस वक्त में मैंने यही कहा था कि ठीक है, इज़ जस्ट हियर देम आउट. मेरा दिल चाह रहा था, लाइक एक पॉइंट पे वो इतना मुझे तब चढ़ी थी ना, आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई लीव दिस प्लेस, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रही है इनकी कॉन्वर्सेशन. लेकिन मैंने कहा नहीं, जस्ट हियर देम आउट. और मैंने सुना, और जस्ट समहाउ मुझे भी ज़ाहिर बात है बैठा, मुझे एक बार समझ नहीं, 4-5 बार, इतनी बार कन्वर्सेशंस उनकी हुई, मुझे भी चीज़ें समझ आने लगी. दैट इज़ हाउ इट गेट्स बेटर. लाइक पेशेंस वाली चीज़ ना, आई हैड टू बी पेशेंट विद इट. यू हैव योर फेयर शेयर ऑफ मिस्टेक्स एंड देन यू आल्सो. मैंने उस दिन एक पोस्ट पढ़ी कि उसमें कुछ इस था, आई डोंट रिमेंबर the exact wording, but it was like university doesn't only give you all those experiences, it sometimes also teaches you that you are also toxic in certain situations. Yes. Oh my god, that is so true. अच्छा, one person can be toxic, उसको नहीं पता चल रहा था बाद में. and इसमें फिर वो बात आ जाती है कि you as a person, मतलब जो कर सकता है ना, you should know how to create boundaries. Sometimes I can be a toxic friend in the friendship too, and उसमें you would need your distance. तो it's all right कि friendship में आपको अगर लग रहा है ना कि आप toxic हो रहे हो, तो you take the back step कि you know what, I don't want my toxicity to affect you. Yes. या if you want some space, I am willing to give you. Yes, it's very friendships important. में ये हो रहा होता है ना कि आप कहते हैं कि यार ये दूर क्यों जा रहा है मुझसे, हम तो हर दिन बात करते हैं. बट एक्चुअली मैनी टाइम्स दैट पर्सन, एंड आई थिंक क्या इंट्रोवर्ट्स का ऐसा होता है कि इंट्रोवर्ट्स को स्पेस चाहिए होती है अपनी. Definitely. You need a break. You do not want to transfer your negative energies to anyone, right? You really want कि वो क्या होता है ना कि अब आपको पता है कि I'm not feeling good. I am being toxic right now. Then why would I intentionally pass on that toxicity? Right? एक तो है ना, मुझे पता ही नहीं है कि I'm being toxic. But now that when I've realized कि I have negative energies right now. Everyone has it. Like, I am being toxic right now. So maybe I need to give the other person the space, or maybe give myself the space to realize कि ये हो क्या रहा है. To reflect. To reflect and then come back as a better friend. Because the other person does not deserve this. You does not deserve this. Yeah, exactly. हर कोई हर equation में सिर्फ इस वजह से है to be respected.
right? To be heard, to be felt, seen, to be understood, right? और अगर आप नहीं कर रहे हो और आप बस अपने नार्सिसिज्म में लगे हुए हो और अपने उसमें हो, so it's not a friendship. हाँ, तो हर एंगल से आप ग्रो करते हो यूनिवर्सिटी में, नॉट ओनली थ्रू दोज एक्सपीरियंसेस बट यू ऑल्सो रियलाइज कि हम भी गलत थे एंड यू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन यू. Yeah, definitely. I think and everybody who's starting out this year or passing out this year or still have some years left, it's the most or still have some memories. Yes. Yeah. It's a time, definitely a very changing time for you. Like जो भी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन It will change you. Yeah, it will change you. It will and shape live you. it to the fullest. Yes. जैसे आप कह रही थी. हाँ, and please live it to your fullest. अगर आपको co-curricular करके मजा आता है, please do co-curricular. If you want to be part of societies, please be part of the societies and live it, and don't stress over studies के अभी अगर नहीं किया, वो हो जाता है बैलेंस. I think university is the time जहाँ पे आपको रट्टे मार के जवाब देने नहीं होते. Just be very clear of your concept and you'll ace exams like आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आ रही हैं ये सारे grades. It's all about finding the right examples. तो वो तभी होता है जब आपके कॉन्सेप्ट इससे मुझे एक चीज़ याद आ गई, जस्ट स्मॉल थिंग दैट द हाईलाइट ऑफ माई एजुकेशन इन माई यूनिवर्सिटी. अच्छा, सो आई वॉज नेवर दैट बच्चा जो रट्टे शट्टे लगाए, लाइक मेरे से नहीं होता था बिल्कुल भी. तो एक चीज़ जो मेरे साथ बहुत अच्छी हुई वो ये हुआ कि पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट आया, ठीक है, कोर्स आया, और वो आया हमारे सेकेंड सेमेस्टर के अराउंड आया. अब आई वॉज वेरी वरिड. मैंने कहा मैं तो फेल हूँ इसमें, क्योंकि अब आपको पता है ना कि लाइक विद टॉपर्स एंड ऑल यही होता है कि अब आपके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं ना, तो यू वांट के आते रहें, ठीक है. Obviously you have to maintain आपको मेंटेन भी करना पड़ता है. तो मुझे था कि अच्छा इसमें तो बुरा आना ही आना है, तो अब इसमें तो मैं नहीं कर सकती, मतलब ये तो मेरा तो ठीक है, बस वो ख्वाब छोड़ देते हैं. सो एनीवे उस टाइम पे अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वर लाइक कि हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, हम अभी नहीं देते बिकॉज ऑफ बस प्रेशर है. उस टाइम पे कुछ इवेंट्स चल रहे थे, तो हम एक काम करते हैं, हम बाद में दे देंगे. उस टाइम पे लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स वर लाइक तुम लोग पागल हो, लाइक अभी मौका हो, आगे प्रेशर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. वी वर लाइक अब क्या करें यार, छोड़ो रहने. और देने पे दिल भी नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज मेरे से रट्टे. आई वाज लाइक आई विल डील विद दिस लेटर, मे बी आई एम मोर स्ट्रॉन्गर देन आई कैन. अच्छा, अब क्या हुआ कि वो दिया नहीं और कोविड आ गया. एंड देन अचानक क्या हुआ कि लाइक जब कोविड आया, अब देखिए पाकिस्तान स्टडीज़ के पूरे वो बुकलेट्स को रट्टा लगा के जाना वर्सेस कोविड में एग्जाम सामने हो, बुकलेट हाथ में हो, तो अब आप देखें फिर वो क्या डिफरेंस हो जाता है. Whether you were smart. So फिर I gave my Pakistan studies COVID वाले that is time. good. So that is something. तो जो लोग education से Blessing in disguise for वरदा COVID जो था. So ये अल्लाह की तरफ से मुझे थोड़ी सी हेल्प हुई कि रट्टे नहीं मैं लगा सकती थी, तो फिर and I got an चलो, that's good. That's great. वरना वो एक सब्जेक्ट ग्रेड्स मेस अप कर देता. हाँ वही ना, the only cheating I've ever done in my life, but 10 on 10 on that. Yeah, so I think there's still a lot that if you start talking about university, तो आपके भी बातें करते करते बहुत से किस्से निकलेंगे, बहुत से 5 This is not even 5% of what we went through in the it's not even university. 5%. There's so many different वो छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत सारी. And then all of those who are thinking अभी इस टाइम में कि मेरा बहुत बुरा टाइम गुजरा, ऐसा भी नहीं है. It's like I had a lot of fun as well, but later on you realize a lot of things. So any last things that you guys want to say, like to wrap up your university experience, or any lesson that you want the audience to take away from it? Isa, आप पहले बताएं. I think she kind of like explained that वो सारी चीज़ in a pointers as well, like you should go out. Yeah, but जो भी मेरे इर्द गिर्द कुछ बच्चे हैं जो कि अब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो अब तो बड़ी हो I like this graduation behavior. I'm really excited to see, कुछ मेरे अपने रिश्तेदार वगैरह भी हैं, तो I'm really excited to see कि अभी यूनिवर्सिटी जाने से पहले ये कैसे, और यूनिवर्सिटी के दौरान I so want to see that change coming in them. I'm really excited to see that. मुझे अभी इसी चीज़ की खुशी है बहुत ज़्यादा. That's something
one should be really looking forward Yeah, to if you and- know someone personally before university. Yeah, and, कि अब ये कैसे बदलते ये हैं. कैसे आपके change बदलाव में तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी ना सबको कि बदलती जा रही हो, क्या सीन है, आप सबको पता चलेगा. एंड आई थिंक लोग यूनिवर्सिटीज़ में बहुत डर रहे होते हैं कि अच्छा रिस्क नहीं लेना. एंड आई वुड से कि भाई रिस्क लो. यूनिवर्सिटी इज़ दैट टाइम जब आप रिस्क लेते हो. देखिए, आप सेकेंड ईयर तक रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी में जाना होता है, ठीक है. तो और उसके बाद भी प्रोफेशनल लाइफ में आप रिस्क नहीं ले सकते, लाइक दैट इज़ अ गिवन. तो यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली टाइम यू कैन टेक रिस्क. तो जस्ट गो, डू इट. हाँ, सोचो कैलकुलेटेड रिस्क हो, लेकिन इफ़ यू आर गेटिंग अ चांस, जो कि बहुत Yeah. मिलते हैं चांसेस, That's so important. अगर Yes. बंक करना है, बंक करने के चांस में कर लो. There's Guys, nothing क्योंकि wrong. इसके 75% बाद मौका attendance. नहीं मिलेगा ये सब करने का, तो कर लो. Take the risks Because that उसके you बाद can. you the will become chances. you will have to become a responsible adult हाँ. no matter what. Exactly. Yeah. एंड टेकिंग रिस्क मेक्स थिंग्स बेटर, क्योंकि आपको पता होता है कि अच्छा जब ये चीज़ मैंने उस वक्त की थी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. That is true. That's how you learn. Yes. Yeah. Yeah. What will you want to say? I just want to say that in university, don't ever let anybody define you. That is Don't. very important ठीक है? as well, Because yes. if there's this one thing that can, really destroy you or really get to you, so that is when you let other people do that to you. ठीक है? So just when you're stepping into university, remember that you're going to be around so many people and everything that we mentioned in today's podcast, and just know that what they're saying is their opinion of things. It's Yeah. not the reality. Yeah, exactly. ठीक है? Because sometimes we tend to do that we think that is us. ठीक है? Yeah. And then we stop ourselves from so many things that we can do in our life. Well said. So so that is something, that is my advice to all of you. Yeah, very well Yeah. said. And I think मैं यही कहूँगी कि in addition to what you guys have said, like ये भी बहुत ज़रूरी है and ये भी बहुत ज़रूरी है जो आप दोनों ने बोला है. And I just want to add on that this is the time that you can invest the most on you. And I would really want everybody who's and enrolling into a university to come out as a very different person. Yeah. Because that's the only meter to judge if you have Yeah. To had, go with to go in it with a growth mindset is very Yes, important. exactly. So just go in, experience stuff, do stuff, make friends. Some of the friendships will turn out to be good, some of them will not, some of them will teach you very valuable life lessons जो कि आप आगे आने वाले relationships में बहुत Chances ज़्यादा. are none of it will work out. Like Yeah. even for me, but Yeah. it's still going to shape you. Yeah, it's still going to shape you. It's still going to make वो boundaries, वो points in your mind जो कि आप आगे कभी किसी relationship या friendship में नहीं होने देंगे अपने साथ. Take risk, like as I said, and वो risk की basis पे ही you will know कि how are you in pressure situations. How are you when you took that risk, like are you a risk taker or not even. Yeah. Like वो सारी चीज़ें करें और खुल के जिएं. Like I think one thing that I've also realized by talking to you guys is like I should have been more risk वो appetite. I should had more risk appetite and I should have gone out and have had more experiences other than the my time with 3 people. But to each one its own. हर किसी की experiences, हर किसी का life बहुत different होगी और आप जिस point पे university जा रहे होंगे वो circumstances भी बहुत different होंगे आपके लिए. How you feel at that time, how you take तो आप उस decisions at तरीके that से time is सारा also- कर रहे होंगे. तो it's not like कि आपकी अगर वो university life हम जैसी नहीं है तो अच्छी नहीं है, या आपकी अच्छी है और हमारी अच्छी नहीं है, या फिर आप day हमारी scholar तो हैं या अच्छी hostel नहीं है, life. But it's some people will look at you and will say, Varda, you had a great university life. Some Yeah. people Yeah, I know, I Yeah. agree. Some people in the university used to be like, Yeah. "Acha, you have a great life, we don't." like the thing that you mentioned about yourself, that you had that balance, is something that so many can envy on. Yeah. Yeah. People can't have that Yeah. balance, right? So it's something that should be lived to the fullest. That's all I can Yeah. say. Like it's something that should be lived to the fullest, and it's the best time of your I think personal development or time. Life too. Yeah, your life Life. too. क्योंकि उसके बाद तो फिर जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो भी मजा बहुत आता आता है. है. It's not मजा like कि आता है. मजा नहीं आएगा, लेकिन एक अलग ट्रेजेक्टरी में चली जाएगी ना लाइफ, और आप एक अलग पॉइंट पे हो, एक अलग You माइंडसेट will के साथ face हो. new Yeah. challenges Yes. And that's the last age of your youth, ना? Yes. उसके बाद Hey, आपकी Allah, I physical feel old now. Oh my god. But yeah, so it's just go live and have fun, and I hope that it turns out to be
one of the best experiences in Yes, your life. that is so And अगर कुछ हमने नहीं बताया, कुछ ऐसे points है जो कि आपको लगता है कि it's very relatable, बहुत सारे points होंगे I'm sure that we have missed out. Like we said, it's not even the 5% of what we have experienced. तो आप comments में बताएं, like करें, share करें, अपने university friends को भेजें. You know, just have the discussion in the comments, like what do you think, like, you know, how can we become better friends? What are the valuable life lessons जो आपने सीखे थे और हमें भी पता होने चाहिए, वो भी हमें बताएं. हम सबको follow करें on Instagram if you want to. If you think that we are very intellectual good people, so follow us on Instagram as with well. a lot of experience. Yeah. So follow us if you want to see more of ourselves. Like इज़ा की प्रोफाइल पे तो आपको दिखेगा, वर्दा ने तो पब्लिक की ही नहीं है और मैं एक्टिव नहीं होती, बट फिर भी मुझे करते हैं. लाइक गाइस, आई लाइक द नंबर एटलीस्ट, यू नो. सो आप मुझे फॉलो करते हैं. एंड आई थिंक विद दैट दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड. वील सी यू इन अनदर एपिसोड. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz.